Hello students, how are you? Today's topic is ratio and proportion part 2. In the first part, we have learned the concepts and the basics of the chapter ratio and proportion. And in today's session, we will learn we will solve the basic to moderate level questions of the chapter ratio and proportion. So without any further delay, let's get started. First, let me show you the screen. Okay. So this is part 2 of the chapter ratio and proportion. Okay, and here in this particular module, today's module, we will solve the basic to moderate level questions. Concept we have covered already in the first part. Now, let's start with the questions. The first question is, a watermelon is cut into two pieces as the weight are in the ratio of 5:7. So एक watermelon के दो टुकड़े किए हैं in the ratio of 5:7. The bigger part, means this seventh wala part, is also cut into two pieces. This in the ratio of 2:3. Calculate the ratio of weight of the final three pieces. So here you can see that there are three pieces. This is the first piece. And what is the portion of this first piece? So can I say this piece is 5/12? Out of 12, 5 part belongs to the first piece. So this is the first piece. Second piece, ये जो part है, can I say this part is 7/12? और ये जो 7/12 है उसके दो टुकड़े हुए हैं 2:3 में. So this part is 2/5. किसका 2/5 किसका? So can I say this is 2/5 of 7/12? And similarly, this part is 3/5 of 7/12. So this is the second piece and this is the third piece, and we got the ratio. So what is the ratio here is 5/12 is to 2/5. 2/5 of 7/12. So 2/5 into 7/12 is to 3/5 into 7/12. So this is 5/12 is to, इसको कैंसिल करेंगे, इसको रहने देते, सो इसको बना देते 14/60, एंड दिस इज 3 into 7 is 21/60. ठीक है, ये बन चुका है हमारा रेशियो, आंसर आ चुका है. बट आंसर आप देख रहे हो, ये जो ऑप्शंस में आंसर जो है वो होल नंबर में दिए, तो इसको सिर्फ होल नंबर में कन्वर्ट करना है. तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को कैसे निकालेंगे? तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो नाउ इट इज 25:60. 25/60 is to 14/60 is to 21/60. 60 निकाल दो, आंसर इज 25:14 is to 21. ऑप्शन नंबर सी. इनफैक्ट डी का भी वही है. ठीक है, नो इश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बैग कंटेन्स 1 rupee coins, 50 paisa coins and 25 paisa coins in the proportion of 5:6:8. तो एक बैग है, मान लो इसमें 1 रुपी के कॉइन है, 50 पैसा के कॉइन्स है एंड 25 पैसे के कॉइन्स है. ठीक है, और उसका जो प्रोपोर्शन है वो 5:6:8 है, क्वांटिटी का प्रोपोर्शन. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम कि ये जो 1 रुपी वाले कॉइन है ये 5x है. 6 रुपीज वाले जो कॉइन्स, सॉरी 50 पैसा वाले जो कॉइन्स है वो 6x है, एंड 25 पैसा के कॉइन्स है हमारे पास 8x. 1 रुपी वाले 5x, 50 पैसा 6x, 25 पैसा 8x, इतनी क्वांटिटी है हमारे पास. आगे क्या लिखा है? टोटल अमाउंट इज 210. इस बैग में कितने पैसे हैं? सो इट इज 210. यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड. मतलब 1 रुपी के कॉइन कितने हैं, 50 पैसा के कॉइन्स कितने हैं, एंड what is the quantity of 25 paisa, that you need to find out. So basically you need to find out is what is the value of 5x, 6x and 8x. अच्छा, ये जो कॉइन्स है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद 1 रुपी कॉइन. 1 रुपी के कॉइन की क्वांटिटी, ये जो हमने लिखा है, दिस इज द क्वांटिटी. 1 rupee के coin are 5x in numbers. So what is the value which of 1 rupee? Now we know that कि अगर हमारे पास 1 rupee के 10 coins है, so its value is 10. If we have 50 coins of 1 rupee, so we have 50 rupees. Similarly, can I say that if we have 5x number of coins of 1 rupee, so its value
is 5x. करेक्ट, बिकॉज 1 रुपी मतलब 1 रुपी. ठीक है. नेक्स्ट इज 50 पैसा. सो वी नो दैट कि 2 50 पैसा अगर हम मिलाएंगे तो 1 रुपया बनता है. इट मीन्स दैट इफ वी हैव 10 coins of 50 पैसा, its actual value is 5 rupees. वैल्यू आधी हो जाएगी. Similarly, if we have 50 coins of 50 paisa, value wise we can say that we have 25 rupees. Similarly, here we have 6x number of coins of 50 paisa. So we can say that amount wise we have 6x का half, that is 3x. Similarly, 4 coin मिला के 1 रुपया बनता है. इसीलिए जब हमारे पास 4 कॉइन होंगे तो 1 रुपया. इफ वी हैव 40 कॉइन ऑफ 25 पैसा, so we can say that we have 10 rupees. Similarly, if we have 8x number of coin of 25 पैसा, value wise उसकी value 1/4 हो जाती है, so that is 2x. So this is the value. So 5x plus 2x, 3x plus 2x कितना हो गया? 10x. और ये 10x क्या है? ये यही है 210 rupees. So 10x is equal to 210, so x is equal to 21. x अगर 21 है तो 5x कितना, 6x कितना, 8x कितना. तो 5x is 5 into 21, 105. 105 105 यहाँ पर ही है, तो यही आंसर है. बट एक बार आगे चेक कर लेते. 6 into 21, 126, and 8 into 21, 168. yes, so option A is the correct answer. इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमने स्कूल में किए थे. नेक्स्ट, ratio of income of A and B is 5:4 and the ratio of their expenditure is 3:2. If at the end of the year each one saves 1600, then find the income of B. इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाले बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है रेशियो के, और कुछ हद तक इजी भी होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर, व्हाट इज द रिलेशन? तो क्या करना होता है, जब भी हम हमारी जो भी इनकम है उसमें से हम कुछ पैसे बचाएंगे और जो पैसे बच गए उसका एक्सपेंडिचर होगा. एक्चुअली हम उल्टा करते हैं. हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमारी इनकम है उसमें से हम पहले खर्चा कर लेते, अगर एंड में कुछ बच गया देन दैट इज द सेविंग. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग? सो कैन आई से दैट इनकम, इनकम में दो ही होता है, एक होता है एक्सपेंडिचर और बच गया वो सेविंग. सो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और यू कैन से सेविंग इज नथिंग बट income minus expenditure. Okay, so this ratio, this relation we know. Now here you can see that there are two people, one is A and one is B. उनकी income expenditure saving के बारे में कुछ लिखा है. So first let's start with income. The income of A and B is 5:4 given. Expenditure is 3:2 given. Okay, so what should be the saving? मान लो कि A की इनकम 5 यूनिट है एंड एक्सपेंडिचर इज 3 यूनिट, तो कैन आई से सेविंग इज 2. सिमिलरली बी का इनकम 4 है, एक्सपेंडिचर 2 है, तो कैन आई से द सेविंग इज 2. मतलब दोनों की सेविंग सेम है, और यहाँ यही दिया है एंड ऑफ द ईयर ईच वन सेव 1600, तो दोनों का सेविंग 1600 है, जबकि रेशियो के हिसाब से हमारा जो सेविंग आया है वो 2 यूनिट आया है. सो कैन आई से हियर दैट 2 यूनिट is equivalent to 1600. So 1 unit is equivalent to 800 rupees. ठीक है. Now we need to find income of B. B का income क्या है? 4 unit. तो 4 unit की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Can I say it is 4 into 800, that is 3200. Correct answer is option C. ठीक है. Very easy question. इसमें अगर इनकम, किसी की भी इनकम पूछी होती, किसी का भी एक्सपेंडिचर पूछा होता तो हम आराम से निकाल लेते. जैसे अगर आपको पूछा जाता कि भाई ए का इनकम बताओ, तो आप कैसे करते? 5 into 800, 4000. ए का एक्सपेंडिचर बताओ कितना होगा? सो इट इज 3 into 800, 2400. बी का एक्सपेंडिचर 2 into 800, 1600. ओके, तो कुछ भी पूछा होता आप आराम से निकाल लेते. ठीक है. विल गो टू द नेक्स्ट वन. Ratio of income of A and B in 2020 was 5:4. Ratio of their individual income in 20 and 21 were 4:5 and 2:3 respectively.
total income of A and B in 2021, then what is the income of B in 2021? तो देखो क्या दिया है उन्होंने यहाँ पर। फर्स्ट में दिया है A एंड B का 20 का इनकम 5:4 था, मतलब A का 20 का इनकम, B का 20 का इनकम 5:4। ठीक है, आगे रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन 20 एंड 21, मतलब पहले A का दिया है तो A का 20 का वर्सेस A का 21 का इनकम इज 4:5। सिमिलरली B का 2020 का इनकम वर्सेस 2021 का इनकम इज 2:3। दिस इज गिवन। फिर आगे क्या दिया है, 21 में दोनों का टोटल इनकम 7,05,600 है, तो उसमें से बी का कितना। our फर्स्ट जॉब ये है कि इसमें जितने भी रेशियोज दिए ना उन सबको ठीक करते हैं। अभी यहाँ पर देखो ए का 20 का इनकम के सामने 5 लिखा है, हियर ए का 20 का इनकम के सामने 4 लिखा है। तो ये दोनों रेशियो को, ये दोनों को ठीक करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 है, यहाँ पर उसी की वैल्यू 4 है। अभी एक ही एलिमेंट की दो वैल्यू नहीं हो सकती, उसकी एक ही वैल्यू रखनी है। सो व्हाट विल डू, विल टेक द एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 विच इज 20। तो इसको भी हम 20 से, इसको 20 कैसे बनाओगे, इंटू 4 करके। तो इसको इंटू 4 किया तो इसको भी इंटू 4। अभी ये बन गया 20 एंड दिस इज 60। सिमिलरली यहाँ पर A20 को भी 20 बनाना है, सो विल मल्टीप्लाई बाई 5। This is 20 by 25. So this is done. Okay, now here B का 20 का इनकम 16 है, यहाँ पर B का 20 का इनकम 2 है, तो इसको भी 16 बनाना पड़ेगा, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। So now it is 16:24। ठीक है, so I think everything is done now। देखो A का 20 का इनकम 20, here also A का 20 20, B का 20 16, B का 20 16। Okay, so everything is done now। This means that A का 20 versus B का 20 वर्सेस A21 वर्सेस B21। ये अगर कोई आपको रेशियो पूछे तो रेशियो कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज 20:16:25:25:B21 कितना है 24। अच्छा, अभी हमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है 21 पे। सो 21 में रेशियो ऑफ A एंड B इज दिस 25:24। इसका मतलब है कि A का कुछ हिस्सा है, B का कुछ हिस्सा। B का हिस्सा कितना है, क्योंकि हमें B का निकालना है तो हम उसी पे ध्यान देते हैं। सो B का पार्ट इज 24/49 एंड व्हाट इज द टोटल वैल्यू 705,600। ठीक है, ये पक्का 7 से डिवाइड होगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, इसको 7 से डिवाइड करेंगे 1,0,0,800। ठीक है, ये 7,05,000 था, यहाँ से हम 1,00,000 पे आगे करें। नेक्स्ट 7 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 3 सो 4 28 14400। So answer is 14400 into 24। This is the answer। ठीक है, इसको अभी सॉल्व कर देते। 24 4 जार होता है 96, so 6 9 कैरी फॉरवर्ड, 24 4 जार 96, 96 में 9 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 105, तो 5 10 कैरी फॉरवर्ड, 24 1 जार 24, उसमें ऐड कर देंगे, सो इट इज 34560। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं। 24 4 जार 96, 9 कैरी फॉरवर्ड, 96 में 5 10 24 3 4 5 6, तो 3,45,600 इज द इनकम ऑफ बी इन 2021। अगर ए का पूछा होता तो आप ऐसा करते 25/49 इंटू 705,600, ये ए का इनकम हो गया। तो दिस इज द आंसर 3,45,600। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय मिस्टेक instead of dividing 117 among ABC in the ratio of 1/2:1/3:1/4, it was divided in some other ratio. Who gains the most and by how much? तो 117 के 3 टुकड़े करने थे, एबीसी में बांटना था, आइडियली इसमें बांटना था, इस रेशियो में। सो दिस इज द करेक्ट रेशियो, बट गलती से
इस रेशियो में बढ़ गया, सो दिस वन इज द रॉन्ग रेशियो। दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो पहले तो ये जो हाफ 1/3 1/4 है, इसको हमें एक प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। सो आवर जॉब इज टू गेट रिड ऑफ द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को कैसे निकालेंगे? 2, 3 एंड 4 का एलसीएम होता है 12, तो सबको 12 बनाने की कोशिश करेंगे। इसको 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 6। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, सो हियर ऑल्सो। और इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, सो हियर ऑल्सो। तो दिस रेशियो इज नथिंग बट 6:4:3। ये वाला जो रेशियो है और ये वाला रेशियो है, ये एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंज नहीं। ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट रेशियो। तो करेक्ट रेशियो क्या है? 6:4:3। तो 117 के 3 टुकड़े करने हैं एबीसी में, 6:4:3 में बांटना है। ठीक है, बट ये करेक्ट रेशियो। बट आइडियली किसमें हमने बट हमने बांट किसमें दिया? व्हाट इज द रॉन्ग रेशियो? बांट दिया 2:3:4 में। ठीक है, बांटना था 6:4:3 में, बट हमने उसको डिवाइड कर दिया 2:3:4 में। एंड ड्यू टू दिस हु गेन्स द मोस्ट? सो बाय ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो यहाँ पर सी का हिस्सा सबसे कम है और यहाँ पर सी का हिस्सा सबसे ज्यादा है। तो इस गलती की वजह से सबसे ज्यादा फायदा सी को हुआ है। सो आंसर इज सी। बट ऑप्शन में हम देखोगे तो प्रॉब्लम ये है कि सी की दो वैल्यू दी है, 20 एंड 25। तो इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दो वैल्यू नहीं होता तो आंसर इज पक्का सी। ठीक है, तो हम सिर्फ सी का निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि इट इज सी हु हैज गेन द मोस्ट। सी का यहाँ पर पार्ट है, कितना हिस्सा है? 3/13। एंड हियर सी का हिस्सा है 4/9। 3/13 of 117। 13 9s are हाँ 13 9s are 117। 3 into 9 27। And here 4/9 of 117। 13 4s are 52। इसका मतलब है कि आइडियली सी को मिलना चाहिए था 27 रुपीज, बट गलती की वजह से नाउ ही गॉट 52। तो कितने का फायदा हो गया उसे? 52 minus 27 दैट्स इक्वल टू 25। सो आंसर इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 C 25। A policeman starts to chase a thief. When the thief goes 10 steps, policeman moves 8 steps. 5 steps of policeman is equal to 7 steps of the thief. Ratio of speed of policeman and thief. ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? पुलिस का स्पीड वर्सेस थीफ का स्पीड का रेशियो। स्पीड क्या होता है? सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में कुछ लिखा है, टाइम के बारे में कुछ लिखा है। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन बट कैन बी सॉल्व वेरी 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 इजीली अगर आपको पता है कि किस तरह से करना है। तो आप देख रहे हो इसमें दो लोग हैं, एक है पुलिसमैन और एक है थीफ। पहले तो देखो क्या लिखा है, व्हेन द थीफ गोस 10 स्टेप्स पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप्स। व्हाट डज दिस मीन? हियर दे हैव यूज्ड द वर्ड व्हेन। अगर आपको पता है इंग्लिश में व्हेन रिप्रेजेंट्स टाइम। व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर वी गोइंग, व्हेन विल वी रीच। सो व्हेन रिप्रेजेंट्स टाइम। मतलब क्या है कि जितने टाइम में थीफ 10 स्टेप लगा लेता है, पुलिसमैन सिर्फ 8 स्टेप लगाता है। जितने टाइम में थीफ 10 स्टेप लगाता है, पुलिसमैन सिर्फ 8 स्टेप लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टेप के लिए पुलिसमैन को ज्यादा टाइम लगता है और एक स्टेप के लिए थीफ को कम टाइम लगता है। इस टाइप के केस में क्या करना है? देखिए, ये है पुलिस, ये है थीफ। पहले तो यहाँ पर टाइम का रिलेशन दिया है। हमें पता है किसको ज्यादा टाइम लग रहा है। किसको ज्यादा टाइम लग रहा है? ज्यादा टाइम जो है वो पुलिस को लग रहा है। ठीक है, बिकॉज पुलिस को ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर दो वैल्यूज दी है 10 एंड 8। तो ज्यादा टाइम पुलिस को लग रहा है तो बड़ी वाली वैल्यू पुलिस को दे देंगे। तो पुलिस के सामने हम लिखेंगे 10, थीफ के सामने लिखेंगे 8। वाई? बिकॉज थीफ टेक्स लेस टाइम
for one step, whereas policeman is taking more time for one step. ठीक है, तो टाइम का रिलेशन मिल गया. आगे दिया है 5 steps of policeman is equal to 7 steps of thief. मतलब पुलिसमैन के 5 steps, मान लो कि ये 5 steps है, एक दो, पुलिसमैन के 5 steps में पुलिसमैन पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चला गया. ठीक है, ये उसके 5 steps. वेरेस पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए थीफ को 7 steps लग रहे. 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 steps लग रहे. दिस मीन दैट कि पुलिसमैन का एक स्टेप थीफ के एक स्टेप के कंपेयर में लंबा है, बड़ा है. डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लेता है पुलिसमैन एक स्टेप में, थीफ एक स्टेप में कम डिस्टेंस कवर करता है. तो यहां से हमें डिस्टेंस का भी रिलेशन मिल गया. पुलिसमैन का डिस्टेंस ज्यादा है, एक स्टेप में ज्यादा है, और रेशो क्या दिया है, 5 और 7 का बात है, तो पुलिस को 7 दे देंगे और थीफ को दे देंगे 5. गॉट इट. यहां से स्पीड का रेशियो मिल जाएगा. वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो पुलिसमैन का हो जाएगा 7/10, थीफ का हो जाएगा 5/8. यहां से स्पीड का रेशियो आ चुका है. वी विल गेट rid of the denominator and we will get the answer. Here it is 10, here it is 8. डिनोमिनेटर निकालने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे. 10 and 8 का एलसीएम 40 होता है. इसको 40 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो आंसर इज, वेट एक मिनट है. थीफ का 10 स्टेप्स इज इक्वल टू 8 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन. पुलिसमैन को ज्यादा टाइम लग रहा था तो हमने 10 दिया और इसको 8 दिया. नेक्स्ट 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप्स. सो पुलिसमैन का डिस्टेंस ज्यादा है तो इसको 7 दिया और इसको 5 दिया. तो 7/10, अच्छा करेक्ट. 7 into 4 28, 5 into 5 25. So the ratio is 28:25. Option C is the correct answer. I was just checking on the calculation. I thought maybe I made some mistake, but no. ठीक है. Next. 4 mobile phones cost as much as 10 earphones. 18 earphones cost as much as 24 headphone, 20 headphone, 100 chargers. 140 chargers cost as much as 90 Bluetooth. And if the price of 10 Bluetooth speaker is 7,000, find the cost of one mobile. तो बहुत सारी कंपैरिजन दी है इसमें, और इसमें 10 ब्लूटूथ स्पीकर की वैल्यू दी है और हमें एंड में एक मोबाइल की वैल्यू निकालनी है, और सबका रिलेशन दिया है. देखो, ब्लूटूथ का रिलेशन चार्जर के साथ है, चार्जर का रिलेशन हेडफोन के साथ है, हेडफोन का रिलेशन ईयरफोन के साथ है, और ईयरफोन का रिलेशन मोबाइल के साथ है. करना कैसे है ताकि हम जल्द से जल्द कर सके. बिल्कुल, ये जो बीच में जितने भी लोग हैं, ब्लूटूथ, चार्जर, ईयरफोन, हेडफोन, किसी की भी वैल्यू नहीं निकालनी है, सीधा हमको मोबाइल का ही वैल्यू निकालना है. तो हर एक स्टेप पे वैल्यू निकालने के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. नाउ व्हाट इज गिवन हियर इज 10 ब्लूटूथ स्पीकर का कॉस्ट इज 7,000. इट मीन्स कि 1 ब्लूटूथ स्पीकर का कॉस्ट इज 700. 10 की वैल्यू 7,000 है तो एक की वैल्यू 700. ठीक है, तो एक ब्लूटूथ स्पीकर का कॉस्ट इज 700. बट यहां पर 90 ब्लूटूथ स्पीकर है, तो 90 ब्लूटूथ स्पीकर का कॉस्ट हो जाएगा इतना. अच्छा, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, दिस वैल्यू इज सेम एज 140 चार्जर. मतलब इतने में 140 चार्जर आ जाते हैं, तो एक चार्जर के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 140. तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ नाउ 1 चार्जर. बट यहाँ पर 100 चार्जर दिए हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. So this is now the cost of 100 charger. But 100 charger is equivalent to 20 headphone. So yes, 20 headphone का cost आ गया. तो 1 headphone का cost के लिए divide by 20. But हमें चाहिए 24 headphone. So multiply by 24. Now this value is equivalent to 18 earphone. So एक earphone का खर्चा हो जाएगा divide by 18. So ये अभी तक हमें जो मिला है, that is nothing but the cost of 1 earphone. But यहाँ पर हमें 10 earphone निकालना है, and this 10 earphone is equivalent to 4 मोबाइल. तो एंड में हम मोबाइल तक पहुंच गए,
लेकिन ये जो कॉस्ट आया है पूरा, ये 4 मोबाइल का है, हमें 1 मोबाइल का निकालना है, सो डिवाइड बाय, इतना करना है आपको, किसी की भी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालनी है। इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 को डिवाइड करेंगे तो 2, 2 into 4 हो गया 8, 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 90 एंड 18, 18 वन जा 18, 18 फाइव जा ये 2 बच गया है, 2 को डिवाइड करेंगे 5। ठीक है, तो आंसर एंड में क्या बचा, 5 into 3 into 5, 5 into 3 15, 15 75, पीछे 2 जीरो, सो आंसर इज 7500। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है रेशियो का, और बहुत आराम से सिर्फ ये इक्वेशन बना के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, टोटल सैलरी ऑफ ए बी एंड सी इज 350। If they spend 75%, 80%, and 56% of their salaries respectively, their savings are in the ratio of 12, 10 is to 12 is to 33. Find the salary of C. मतलब यहां पर एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दिया है और यहां पर सेविंग का रेशियो दिया है। ठीक है, 3 लोग हैं ए बी सी। इनकम दिया है, बट इनकम के बारे में और कुछ नहीं लिखा, टोटल इनकम दिया है। सो एक्सपेंडिचर, 3 चीजें होती है, एक है इनकम, वन इज एक्सपेंडिचर, वन इज सेविंग। ठीक है, नाउ एक का जो एक्सपेंडिचर है वो 75% है। 75% एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि अगर उसकी इनकम 100 है तो उसमें से 75 रुपीज इज द एक्सपेंडिचर एंड 25 इज द सेविंग। सिमिलरली बी का एक्सपेंडिचर इज 80%, इट मीन्स दैट इफ इनकम इज 100, 80 is the expenditure and 20 is the saving. C का 56% expenditure, it means that if income is 100, so 56 rupees expenditure and hence 44 rupees saving. बड़े बड़े नंबर है, थोड़ा छोटा कर देंगे तो A is to B is to C का रिलेशन देखो क्या बन जाएगा। 100, 75, 25 को ऐसा लिख सकते हैं 1, 3, 4, सो द न्यू रेशियो इज 4, 3, 1। ठीक है, इसको अगर हम करें सॉल्व तो ये हो जाएगा 1, 4, 5, और इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से तीनों को, सो दिस विल बिकम 11, 56 by 4 14 एंड 100 by 4 25। ठीक है, ऐसा आ गया। अभी देखिए यहां पर हमने क्या किया, हमने तीनों का इनकम 100 अज्यूम किया है, तीनों का इनकम हमने 100 अज्यूम कर लिया। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि तीनों का इनकम सेम हो, डिफरेंट होगा, और इसीलिए क्योंकि तीनों का इनकम डिफरेंट है, हमारा जो सेविंग का रेशियो आया है वो 1:1:11 आया है। वेर एज एक्चुअली में सेविंग का रेशियो ये नहीं है, सेविंग का रेशियो है 10:12:33। A:B:C का सेविंग का रेशियो है 10:12:33, जबकि हमारा तो ये आया है। अभी हमें इनको मैच करना है। अभी देखो, वी विल स्टार्ट विथ ए। ए का वैल्यू कितना है 10, हमारा तो 1 आया है, तो 1 आया है तो क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए इंटू 10, यहां पर भी इंटू 10, यहां पर भी इंटू 10। इसको बी का वैल्यू 12 है, हमारा तो 1 आया है तो इंटू 12 करना पड़ेगा, ईयर ऑल्सो इंटू 12, ईयर ऑल्सो इंटू 12। और सी का 33 है, हमारा 11 आया है, सो इंटू 3 करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द न्यू रेशियो। अच्छा, अभी क्या है, बात हो रही है सी का सैलरी निकालना है हमें। टोटल सैलरी पता है और सैलरी का रेशियो भी हमें पता चल गया, यही है ना इनकम का रेशियो, और यही सैलरी का भी रेशियो है। सो ए इज टू बी इज टू सी का इनकम का रेशियो है 40:5 × 12 60, 25 × 50 70, ये रेशियो है। 5 से डिवाइड कर देंगे, सो दिस विल बिकम 8, 12 एंड 15, ये रेशियो आ गया। किसका रेशियो है ये, इनकम का रेशियो, इन शॉर्ट सैलरी का रेशियो। करेक्ट, सैलरी बोलो इनकम बोलो, वन एंड द सेम। टोटल सैलरी है 350,
तो हमें सी का निकालना है, तो सी का पोर्शन कितना है? सी का पार्ट है 15 आउट ऑफ 20 प्लस 35। 35 में से 15 पार्ट बिलोंग्स टू सी and the total salary is 350. Answer is 150. C का income 150. Not an easy question. Next. A sum of 46,800 is divided among A, B, C, and D in such a way that ratio of combined share of A and D to combined share of B and C is 8:5. मतलब 46,800 को चार लोगों में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है ये दिया है। What is given here is A plus D to B plus C is 8:5. ठीक है। आगे दिया रेशियो ऑफ B to C is 5:4. दिस इज ऑल्सो गिवन। A receives 18,400, तो A की वैल्यू दे दी गई है, कितना है? 18,400. दिस इज गिवन। इफ X इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ A एंड B, तो X क्या है? A और B का डिफरेंस है। एंड Y इज द डिफरेंस बिटवीन C एंड D, Y क्या है? तो C एंड D का डिफरेंस है। आपको निकालना है X माइनस वाई, मतलब X माइनस वाई यू नीड टू फाइंड आउट। इसका मतलब ये आपको ए बी सी डी सबका इंडिविजुअल वैल्यू निकालना है। ए का दिया है 18,400। अभी देखो यहां से ये जो पहले वाला है उससे कैन आई से दैट हियर ए प्लस डी इज 8 बाय टोटल कितना है 13, 8 बाय 13 ऑफ 46,800। सिमिलरली आई कैन से दैट बी प्लस सी इज 5 बाय 13 ऑफ 46,800। ये डिवाइड होता ही होगा, 3 से कर देंगे तो 39, 46 से तो 7, 78, 6, 3600। 36 इंटू 3600 इंटू 8, 6 इंटू 8 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 24 प्लस 4 28, सो इट इज 28800। ठीक है, मतलब ए प्लस डी की वैल्यू आ गई है 28,800। ठीक है, उसमें से ए है 18,400, तो डी कितना हो जाएगा? 28,800 माइनस 18,400। 800 में से 400 गया 400, 28 में से 18 गया 10, तो डी इज 10,400। ठीक है, बी और सी मिला के इतना है, ये हमको पता है, ये कितना आया था 3600। 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 होता है 180, तो 180 पीछे 2 जीरो। इसका मतलब है कि बी प्लस सी का टोटल इनकम इज 18,500 और इसको 5:4 में बांटना है। ठीक है, इसको बी और सी को 5:4 में बांटना है, तो बी को कितना मिलेगा 5/9 ऑफ 18,000, सी को मिलेगा 4/9 ऑफ 18,000, ये है 2,000, सो बी को मिलेगा 10,000 एंड सी विल गेट 8। ठीक है, बन गया। नाउ वी नीड टू फाइंड x माइनस वाई। x क्या है? a माइनस बी। a का वैल्यू है 18,400, b का वैल्यू है 10,000, so x is 8,400 and what is y? y is c minus d। c है 8,000, d है 10,400, so it is 2,400। हमें निकालना है x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 6,000। 6,000 इज द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन था इसमें बट डूएबल। नेक्स्ट, 3/7 of monthly income of Neeraj is half the monthly income of अंकुर। तो नीरज और अंकुर का मंथली इनकम का एक रिलेशन दिया है। सोनिया एक्सपेंस 20% of her monthly income on rent which is 17,500। सोनिया's expenditure, ओके ठीक है, बहुत कुछ लिखा है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ नीरज एंड अंकुर। तो ये दिया है 3/7 ऑफ नीरज इज इक्वल टू हाफ ऑफ अंकुर। ठीक है, सो फ्रॉम हियर we will get the relation between Neeraj and Ankur.
अंकुर को यहाँ लेके जाएंगे, नीरज को वहां लेके जाएंगे, सो इट इज 7/6। तो नीरज का इनकम वर्सेस अंकुर का इनकम इज 7/6। ठीक है, नेक्स्ट। क्या दिया? सोनिया एक्सपेंस 20% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन रेंट। 20% मतलब 1/5। तो सोनिया जितना भी पैसा कमाती है उसका 1/5 रेंट में चला जाता है, और उसकी वैल्यू है 17,500। सो कैन आई से कि सोनिया की टोटल इनकम होगी 17,500 इंटू 5। ये होगी सोनिया की टोटल इनकम। एंड सोनिया's एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज 50% ऑफ द मंथली इनकम ऑफ नीरज। इसका मतलब है कि सोनिया एक्सपेंडिचर पे जितना खर्च करती है वो निखिल की सैलरी का आधा है। सोनिया इज स्पेंडिंग 17,500। इट मीन्स कि निखिल का जो इनकम है, इनकम दैट इज 17,500 का डबल। 17.5 का डबल होता है 35, सो इट इज 3,500। ठीक है, तो देखो यहां से हमें निखिल का इनकम जिसका वैल्यू 7, निखिल वर्सेस अंकुर का 7:6 था, निखिल का इनकम है 35,000। तो कैन आई से अंकुर का इनकम होगा 30,000, बिकॉज द रेशियो इज 7:6। ठीक है, चलिए आगे। फाइंड द रेशियो बिटवीन सोनियाज मंथली इनकम, सोनिया का इनकम वर्सेस अंकुर का इनकम, ये निकालना। सोनिया का इनकम हम निकाल चुके थे, कितना आया था? 17,500 इंटू 5। और निखिल का, नहीं सॉरी, किसका निकाला है? अंकुर का। अंकुर का है 30,000। ये आ गया अपना आंसर। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60। इसको और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 35। 35/12 है कहीं पर ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 35:12। Arithmetic is all about understanding, reading the question properly. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। नेक्स्ट, देर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। 3 कंटेनर है, कैपेसिटी इक्वल है, इसका ख्याल रखिएगा। ऐसे मान लो देर आर 3 कंटेनर्स। रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:2। सेकेंड कंटेनर में एसिड एंड वाटर का रेशियो इज 7:3। एंड थर्ड कंटेनर में एसिड एंड वाटर का रेशियो इज 11:4। ठीक है, इफ ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर, तीनों के तीनों कंटेनर के लिक्विड को मिक्स कर दिया, सो यू नीड टू फाइंड कि एसिड वर्सेस वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, उनको लगता है यहाँ से एसिड का 3 ले लेंगे, यहाँ से 7 ले लेंगे और 11 ले लेंगे। तो वो एसिड के लिए क्या करेंगे? 3 + 7 + 11। और वाटर के लिए 2 + 3 + 4। सो उनका आंसर बन के आ जाएगा 21:9। ये गलत है। ये गलत इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तीनों कंटेनर की कैपेसिटी इक्वल है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्वांटिटी इक्वल है या नहीं। उसके लिए बहुत सिंपल मेथड है, क्या करना है देखिए। यहाँ पर आपको करना है 3 + 2 कितना हो गया? 5। 7 + 3 10। 11 + 4 15। आप देख रहे हो किसी की भी वैल्यू सेम नहीं है, सबकी वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? दिस इज ऑल रेशियो। रेशियोज में आप कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो तीनों को इक्वल बनाना है, 5 10 एंड 15। So for that once again we will take the LCM of 5 10 and 15। 5 10 and 15 का LCM होता है 30। तो इसको हमें 30 बनाने के लिए इंटू 6 करना पड़ेगा। अगर इसको 6 करेंगे इंटू 6 तो इन लोगों को भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो एसिड वर्सेस वाटर का रेशियो हो जाएगा 3 × 6। इसको भी 6 से और इसको भी 6 से, तो वो रेशियो हो जाएगा 18:12 का। इसको 30 बनाने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा, इसको 30 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा। इसको इंटू 3 करे तो ए भी करना पड़ेगा इंटू 3। दिस इज ऑल्सो इंटू 3। तो हियर एसिड टू वाटर का रेशियो इज 21:9। एंड लास्ट में इसको इंटू 2 किया है तो इन लोगों को भी करना पड़ेगा। सो दिस इज 22:8। अभी आप देखिए, 18 + 12 30, 21 + 9 30, 22 + 8 30। देखिए तीनों कंटेनर का कैपेसिटी इक्वल हो गया है। अभी आप आराम से ऐड करो।
एसिड वर्सेस वाटर, एसिड कितना है 18, 21, 22, 18 प्लस 21 प्लस 22, ये हो गया 40, 40 एंड 20, 61, so this is 61, 61 कहाँ है, अच्छा दो ऑप्शन। वाटर कितना है 12 प्लस 9 प्लस 8, 12 plus 8, 20 and 29, so ratio is 61:29, option A is the correct answer। ठीक है, so what we have learned in this particular question is कि सीधा सीधा ऐड नहीं करना है, पहले देखो तीनों कंटेनर की कैपेसिटी इक्वल थी तो इजीली इक्वल बनाया हमने। I hope you have understood this chapter very well. Here we have, in this particular module, we have covered easy to moderate वाले questions of the chapter ratio and proportion. So I hope आपको समझ में आया होगा. So thank you very much.